So, hello Tejasvi. Today's talk is very important. In today's lecture, we are going to start another chapter, which is this chapter is, as we have written on the top, surface chemistry, definitions, applications, and adsorption. Adsorption. I hope this is a very important topic, and most important topic, in fact, and always very interesting because there are large number of phenomena which occur at the surface. That's why the name is surface chemistry. Surface chemistry means that that is the study of phenomena which are occurring at the surface of the certain solids or liquids. What I am trying to say to you is very simple. It has been found that certain solids have a tendency to absorb certain molecules on their surface. On their surface. What we are trying to say that at the surface, some phenomena is occurring. How? Let me tell you. For example, if I consider that this is a solid, this is a solid, this is a solid. Now, this solid has a surface. You can see that this solid has a surface. And what will happen that it can absorb certain gas particles on it. These are the gas molecules. They are getting absorbed on the surface of this. You can see that solids have a tendency to absorb certain gas molecules on their surface. And at the interface, the phenomena which is taking place at the interface of these surface of the solid and the particle which is being absorbed is what we call as the surface chemistry. So this study of this phenomena. Here what I have tried to show that there were gas particles. They are coming and now accumulating at the surface of the solid. This is my solid. And we already know, you know that you are getting whitewashed of your home walls, distemper or whatever you do. After some period of time, you find that those walls become black. Why? Because in the atmosphere there are gases, and these gas particles are slowly absorbed on the surface of the walls, That's why after some time you need painting, you need distempering or whatever, whitewashing, etc. of your home walls. If you know that people working in the coal mines, their face is black. Why? Because inside that coal mines, there is a smoke, and smoke is carbon particles. There are gases, carbon particles. They get absorbed on your face, and you are cleaning your face every day. Why? Because there are dust particles and there are other in the atmosphere gas particles are there. They are likely to stick to our skin. This phenomena which we are studying is called the surface chemistry, and we already know that charcoal, if I will talk of the charcoal is a very good adsorbent. Powdered charcoal is found to be very effective in absorbing gases on its surface. Silica gel, alumina, clay, etc. These substances are absorbing the particles on their surface. They absorb particles on their surface. So what you have here, I have written that the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. There are certain terms which will be used in this chapter, and there are certain phenomena which we are aware of. For example, dissolution
Dissolution. When a solid dissolves in a liquid, what happens? Dissolution. The dissolution is a surface phenomenon. Crystallization. Crystallization. You have heard about what is crystallization. When we prepare crystals of a pure solid by cooling the saturated hot solutions, the crystals are being formed. You know how they are formed in a liquid. There is a surface between the liquid and the solid here, which is being produced. And we also know about the corrosion. What is corrosion? Corrosion is a rusting of iron. Corrosion is also a surface phenomenon. It is happening at the surface. And the electrode processes. At the electrode, we have told you what is happening. Reactions are taking place at the electrode, oxidation or reduction. So these reactions at electrode process is also the processes which are taking place at the electrode are also surface phenomena. Further, you have heard about catalysts, which we are using a lot of them in the chemistry. How the catalysts work? In organic chemistry, you will see that nickel, palladium, platinum, they are used as a catalyst. They are solids, they are solids. So what they do? They absorb these particles on their surface. For example, hydrogenation reaction, this hydrogen gets absorbed on the surface of the catalyst, which is nickel, platinum or palladium. Nickel, platinum or palladium, you know that we are using them, nickel, palladium, platinum. They are being used as catalyst for performing number of organic reactions, especially hydrogenation. Hydrogen gas gets absorbed on the surface and then the reaction proceeds very fast. In the absence, reaction is not going to take place. These are the examples which we already know. Now, for example, what you can do, there are so many examples which we experience. If the charcoal, activated charcoal or powdered charcoal is a very good adsorbent. It absorbs on its surface gas molecules. If I say that in a closed container, I'm giving examples of this. In a closed container, you have a gas and you add in this charcoal powder. What will be the result of that? Charcoal is a very good adsorbent. It will absorb the gas molecules on its surface. The result will be the pressure of the gas will decrease. If you will record the pressure, what happens is the pressure of gas decreases. Pressure of the gas decreases in this case. Why the pressure of the gas decreases? Because as soon as you add charcoal, what will be the result of that? If I put charcoal in a jar containing gas, which is closed from the top, the charcoal will absorb gas particles on its surface. Therefore, the concentration of gas will become less. And that we can measure the pressure. The concentration of the gas will become less. This is what we call as adsorption has taken place. Further, what you can do? You can take colored dyes. Dyes are always colored. Blue, black, green, etc. You shake it with powdered charcoal. Add powdered charcoal and shake it. This will become colorless. Dye will become colorless. So where the color is gone, the colored dye which was present in this, because the dye contains some solvent and some solute particles which are colored, which we call as dye.
they will be absorbed by the charcoal. They are absorbed by the charcoal, therefore they become colorless. They become colorless. You see that in the sugar industries, when they prepare sugar, the sugar has got impurities, and this is yellow in color. Yellow in color, the sugar which is yellow in color is due to impurities. They pass it through, but there are charcoal plates on, they pass it through powdered charcoal. What will be the result of that? The charcoal will absorb the yellow impurities, and what you will get? White sugar. White sugar. It has been found, if I take alumina or silica gel, Al2O3, I am saying alumina or silica gel, it absorbs water molecules, absorbs H2O molecules on its surface. You have seen that you are buying certain electronic items or certain attaches, suitcases, or bags, etc. Nowadays, inside that you will find that there is a pouch. There is a pouch which they have added. What is the function of that pouch? It contains, say, silica gel or charcoal, powdered charcoal. The purpose of this is to absorb water molecules. These are good adsorbents. They will absorb water molecules. These are some of the examples to prove that there is a process which we are talking of, adsorption. And here I have given some definitions of these. The first thing I am defining is, what is adsorption. What is adsorption? And here I have given a definition. You can see that here, the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or a liquid is termed as adsorption. As I said, this is my solid, this is my solid, and on the surface they absorb certain molecules, and we represent it, for example, solid, gas. This hyphen is there. Hyphen shows that at the interface, this is my solid and this is the gas. Liquids can also absorb certain molecules, but there can be no adsorption when I talk of gases. Why? If I have gases, they intermix. You know, gases don't have a surface, they are going to intermix. So gases are not going to absorb gases on their surfaces. Gases will intermix. So there is no phenomena of adsorption of a gas on a gas. Gas doesn't have a surface. These molecules intermix. Gas molecules intermix immediately. And adsorption means the accumulation of molecular species at the surface. Molecules are only sticking to the surface. That's what you are saying here, on the surface. This is my solid. These molecules are here, 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 on the surface, on the surface. So there is a higher concentration of the molecules at the surface, but not in the bulk, not in the bulk. There is nothing inside this. We'll give example of that also. So this is our definition of what? Adsorption. Accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid is termed as adsorption. So we have now what we call as adsorption. And second, there are few terms which are used here. There are few terms which are used here. What are those? See what I have written there. Adsorbate. I'm talking of adsorbate. What is an adsorbate? See, the substance which is being adsorbed is called the adsorbate. Which substance is being adsorbed here? I'm saying the substance
the substance which is being absorbed on the surface. As these gas molecules, you can see, are being absorbed on the surface of the solid, on the surface of the solids. For example, oxygen gas, hydrogen gas, nitrogen gas, ammonia gas, SO3 gas, all these can be absorbed. So they are acting as adsorbate. In exams, many times they ask a question, what is adsorbate? What is adsorbate? So we know what is adsorbate or what is adsorbent. Adsorbate, सर एब्जॉर्प्शन का सर मेनली वो क्या होता है, मतलब जैसे एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि वो कोई भी चीज खींच लेता है अपने अंदर, हाँ, जैसे क्लॉथ गीला होता है तो उसमें पानी एब्जॉर्ब कर लेते, तो ऐसे एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? हाँ, देखो मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा है कि इसमें क्या होता है कि देखो कि मैं ये कह रहा हूं कि जो सॉलिड का सरफेस है ना, वो सिर्फ उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आके बैठेंगे, अंदर नहीं जा रहे। वो अंदर चले गए तो वो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके सरफेस के ऊपर सिर्फ आके बैठ गए, तो कंसंट्रेशन कहां बढ़ गई? सरफेस के ऊपर। उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। डी लगाया मैंने। जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब होता है उसे एड्सॉर्बेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैस के मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए कहाँ पे? सरफेस के ऊपर, तो वो एड्सॉर्बेट है। और दूसरा सब्सटेंस मैं बता रहा हूँ वो होता है एड्सॉर्बेंट। क्या होता है? एड्सॉर्बेंट। वो होता है जो एड्सॉर्ब करता है अपने सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर कह रहा हूँ, सिर्फ मैंने कहा कि ये सरफेस फिनोमिना है, नाम ही इसका सरफेस केमिस्ट्री बता रहा हूं। अभी ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर नहीं गए, सिर्फ सरफेस पे आके बैठ गए हैं। कैसे बैठे हैं वो अभी हम देखने जा रहे हैं, मतलब किस टाइप के बॉन्ड बना रहे हैं या कि वंडरवाल फोर्स से चिपके हैं, वो अभी हमने नहीं बताया, अभी हम सारा बताने जा रहे हैं। तो एड्सॉर्बेंट होता है कि जो सब्सटेंस अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करता। देखो हमने यहाँ पे डेफिनेशन दोबारा से लिख दी है। एड्सॉर्बेंट देखो ये लिखा है, एड्सॉर्बेंट इज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बल्क ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। मतलब ये जो मेरा सॉलिड है जिसके ऊपर ये एड्सॉर्ब हुए हैं, इस सॉलिड के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स आए हैं ऊपर आके चिपक गए हैं, ये जो सॉलिड है इसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट। इनके एग्जांपल्स हमने तुम्हें दिए, जैसे सिलिका जेल बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है, सिलिका जेल। और हमने चारकोल का नाम बार बार लिखा, चारकोल बहुत ज्यादा यूज होता है। चारकोल एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है। पाउडर चारकोल का बहुत यूज किया जाता है, वो एड्सॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस के। जो लोग माइंस में काम करते हैं, जो मास्क पहन के जाते हैं, मास्क में क्या होता है? चारकोल होता है। तो ये गैसेस होती है ना जो पॉइजनस, उनको एड्सॉर्ब कर लेता है। वहां पे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो माइंस में जाते हैं लोग, तो उनके लिए मास्क जरूरी होता है। सर अगर एब्जॉर्ब कर ले तो? एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ एड्सॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब वाले केस में अभी बताऊंगा कौन से होते हैं। ये जो मैंने बताए हैं ना, सिलिका जेल और चारकोल, ये सिर्फ एड्सॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। एब्जॉर्ब नहीं करते। क्ले जो होता है, जैसे क्ले होता है, ये हमने एक प्रॉपर्टी उनकी स्टडी की, ये एक प्रॉपर्टी होती है, क्ले होता है। इस तरह जियोलाइट्स होते हैं, जियोलाइट्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं ना, ये अपने सरफेस के ऊपर, इनका स्ट्रक्चर होता है पोरस। मतलब इनका पोरस स्ट्रक्चर होता है। पोरस का मतलब इनके स्ट्रक्चर पे कुछ ऐसे होल्स होते हैं एम्प्टी, उसके अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको? ये जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, इसी को ही हमने एब्जॉर्प्शन कहा। अब एग्जाम में उसने पूछी थी डेफिनेशन, व्हाट इज एड्सॉर्बेट, व्हाट आर एड्सॉर्बेंट्स। तो ये हमें लिखना है एग्जाम्पल में। एड्सॉर्बेट कौन कौन से सब्सटेंस हैं, जैसे जो गैसेस के नाम मैंने लिखा, ये सब एड्सॉर्ब हो जाती हैं। अभी भी जिस टेबल पे तुम बैठे हुए हो या जिस टेबल में मैं बैठा हूं, इसके ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स स्टिक कर रहे हैं, मुझे दिख थोड़ी रहे हैं। कौन से? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये अभी मेरे टेबल के सरफेस पे बैठे हुए हैं मॉलिक्यूल्स। और इन्हें अल्ट्रा प्योर करने के लिए हमें मतलब प्रेशर वैक्यूम पंप लगाना पड़ता है। वैक्यूम पंप लगाएंगे तो ये गैस के पार्टिकल्स हम निकाल लेंगे। ये चिपक जाते हैं, आके चिपक जाते हैं, इसी को एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अंदर नहीं गए, ऊपर ही ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सरफेस पे।
तो ये सरफेस फिनोमिना है। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन बताई आपको, देखो एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट की इसको नोट कर लोगे तुम, ये डेफिनेशन हमने बनाई है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल आए और वो बैठ गए उसे एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। और एक एड्सॉर्बेट होता है जो कि एड्सॉर्ब होता है, और एक सब्सटेंस क्या होता है, एड्सॉर्बेंट, जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होती है, जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होती है उसे एड्सॉर्बेंट कहा जाता है। अब इसके बाद में तीसरा वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है डीजॉर्प्शन। हमने क्या लिखा, डीजॉर्प्शन क्या होता है, डीजॉर्प्शन लिखा हमने। डीजॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई चीज एड्सॉर्ब्ड है वो डीजॉर्ब हो गई। कैसे होगी, देखो गैस के मॉलिक्यूल बैठ गए, अगर मैंने एनर्जी दे दी, हीट कर दिया तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे। तो कई मेथड्स होते हैं। तो डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग द एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस, तो आपने रिमूव करना है किसको, जो एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस है, रिमूविंग एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस। तो एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस को हमने रिमूव करना है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन। तो हम कह रहे हैं डिसॉर्प्शन हो गई, क्या हो गई, डिसॉर्प्शन। जब ये मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए, आपने एनर्जी दे दी, हीट कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, टूट जाएंगे, तो वापस डिसऑर्प्शन हो जाएगी, डिसऑर्प्शन हो जाएगी। अब एक और चीज जो तुमने बार बार मेरे पूछी कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ऐसे भी हैं सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सब्सटेंस सारे के सारे जो हमारा मैटर है ना, मैटर जैसे ये मेरा मैटर है, अब एब्जॉर्ब का मतलब है ये पार्टिकल इसके अंदर आ गए, सारे इसके अंदर आ गए कंप्लीटली, उसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं, बल्क ऑफ द सॉलिड। तो ये हमारा सॉलिड था, इसके अंदर चले गए सारे पार्टिकल, क्या हो गए, इसके अंदर चले गए। तो जब अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए उसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है, यहाँ पर दिख रही है। हमने क्या बताया, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो ये कह रहा है, इट इज द फिनोमिना इन विच a substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. It is a bulk phenomena. For example, when water comes in contact with calcium chloride, it is uniformly distributed throughout the body and is absorbed. देखो ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। यही तुमने क्वेश्चन मुझसे पूछा। तुमने क्या पूछा कि एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। देखो इसमें डी लगा हुआ है, इसमें बी लगा हुआ है। डी का मतलब यह है कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब कर गया, मतलब अपने अंदर ले गया, जो था सब्सटेंस अपने अंदर ले गया। हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, तुम कह रहे हो उनमें गैसेज चले जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो अंदर चली जाती हैं पूरी की पूरी सेल में, और फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता रहता है। तुम्हारे को पता है कि जो हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे सेल्स बॉडी के अंदर उनमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है, और जो लिक्विड होते हैं वो ऑस्मोसिस होती है, वो अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने सिलिका जेल लिया, देखो डिफरेंस क्या है, अगर सिलिका जेल है और वाटर है तो ये करता है एड्सॉर्ब। क्या करता है, एड्सॉर्ब। क्या करता है, एड्सॉर्ब। लेकिन अगर मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिया, सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड का पाउडर आता है, एनहाइड्रस होता है एनहाइड्रस, ये अगर वाटर डाला तो ये करता है एब्सॉर्ब, पानी सारे अंदर चले जाता है कैल्शियम क्लोराइड के। ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने लिखा है। देखो जब मैं क्वेश्चन या एग्जांपल देता हूं वो कोई क्वेश्चन के आंसर ही होते हैं, ऐसे पेपर में आए हुए होते हैं। तो सिलिका जेल, एल्यूमिना, चारकोल, क्ले, कोलाइड्स, मेटल्स, फाइनली डिवाइडेड मेटल, ये सब क्या काम करते हैं,
दे आर गुड एड्सॉर्बेंट्स, एड्सॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स को, उसी प्रोसेस को एड्सॉर्प्शन कहते हैं। देखो कि मैंने क्या किया कि आपने एक चौक लिया, ये लो चौक, चौक का कलर वाइट है, ये वाइट है, आप ना इसको इंक में डिप कर दिया, इसमें डिप कर दिया इंक में, ब्लू कलर की इंक थी, अब ब्लू कलर की इंक मैंने चौक को डाल दिया, फिर निकाल लिया, तो आप देखोगे कि सरफेस पे एक ब्लू कलर आ गया, सरफेस पे क्या आ गया, ब्लू कलर। अब चौक को तोड़ दो, लो दो पीस में तोड़ दो, तो आप देखोगे अंदर से व्हाइट निकला चौक, अंदर से क्या है, व्हाइट, और आउटसाइड से क्या निकला था चौक, क्या कलर था, अगर मेरी इंक का कलर ब्लू था तो ये ब्लू कलर था। तो इसका मतलब ब्लू वाली डाई ना इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गई है, क्या होगी, एड्सॉर्ब हो गई, तो ये एड्सॉर्प्शन है। आपको पता है वो ये सरपंच टाइप के होते हैं कुछ ऐसे, सरपंच टाइप की एक चीज होती है, अगर उसको पानी में डिप करो वो पानी को सोक कर लेता, पानी को क्या कर लेता, सोक कर लेता, तो वो सारा का सारा पानी उसके अंदर चले जाता है, अंदर चले जाता है। ये जो पेपर नैपकिन होते हैं ये क्या करते हैं, देखो पेपर नैपकिन क्या काम करता है, पेपर नैपकिन आपके पास है, अब आपके पास यहाँ इंक गिर गई, इंक गिर गई, आपने पेपर नैपकिन उसके ऊपर रखा, वो सारा ना इंक को सारे अंदर चले जाएगी, उसके कंप्लीटली चले जाएगी, ये जो इंक है ना ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बी वाला कह रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर लेगा इंक, मतलब इंक इसके सारे अंदर पेपर में चले जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेता, इसलिए इनको नैपकिन्स कहा जाता है, नैपकिन्स कहा जाता है। तो ये अगर पानी डालूंगा ये पानी का पानी सारा सोख कर लेगा, सोख कर लेगा, सरफेस में नहीं है, सारे अंदर चले गया पानी, ये एब्जॉर्प्शन हुई है। और अंदर अगर चौक तोड़ोगे तो देखोगे पानी जो है ना, पानी अंदर से गीला होगा चौक, लेकिन ब्लू नहीं होगा, इसका मतलब पानी अंदर तक चले गया लेकिन ब्लू वाली डाई अंदर नहीं गई, ब्लू वाली डाई नहीं गई। तो फिर एक और टर्म का यूज हो रहा, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन। ये सारी डेफिनेशन आती हैं एग्जाम में एज इट इज, देखो इस चैप्टर में ऊपर मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशंस, एप्लीकेशंस, तो इसका सारा चैप्टर में क्वेश्चन इस टाइप के आने वाले हैं, क्या से आने वाले हैं भाई, इनकी इनके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, इनकी डेफिनेशन पूछेगा सीधा एक एक नंबर में, व्हाट इज एड्सॉर्बेट, व्हाट इज एड्सॉर्बेंट, व्हाट इज डिसॉर्प्शन, व्हाट इज जॉर्प्शन। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो दोनों ही फिनोमिनल शो करते हैं, क्या वो एड्सॉर्ब भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं, बी वाला। तो यहां पर एड्सॉर्प्शन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है, ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और अंदर भी चले जाते हैं, जैसे कि मैंने चौक को कहा, तो पानी में अगर चौक को डिप कर दोगे तो ऊपर से भी गीला है और अंदर से भी गीला है, पानी ऊपर भी है और अंदर भी चले गया, तो वाटर को वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया और एड्सॉर्ब भी कर लिया, तो ऐसे प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब यहाँ तक हमें डेफिनेशन समझ आ रही है कि मैं डेफिनेशन ही बताई अभी तक, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज एड्सॉर्बेट, व्हाट इज एड्सॉर्बेंट, व्हाट इज डिसॉर्प्शन, व्हाट इज जॉर्प्शन, व्हाट इज जॉर्प्शन। यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन लिख भी दी आपके लिए कि ताकि आपको पता लग जाए, व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों इकट्ठे हो जाएं, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। देखो आपने बताया अगर ये गैसेस को हम ले लें क्लोज्ड वेसल में, पाउडर चारकोल डाल दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, गैस का कम हो जाएगा, बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल। तो चारकोल का नाम बहुत हम ले रहे हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है। सिलिका जेल भी है, क्रोमेटोग्राफी तुम पढ़ोगे जिसमें कि सेपरेशन की जाएगी बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन, तो वो सरफेस फिनोमिना है। क्रोमेटोग्राफी जो हम स्टडी करेंगे कि सेपरेट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स करेंगे थ्रू एड्सॉर्प्शन, वो एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। सर हाँ सर ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें सिर्फ एब्सॉर्ब होता हो, है, जिसमें सिर्फ एब्सॉर्ब होता हो?
बता तो दिया, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता। तो सर वो बाहर से नहीं होता गीला? नहीं, कैल्शियम क्लोराइड गीला हो जाएगा, सारा ही गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा, इसके अंदर पानी चले जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का पाउडर होता है केमिस्ट्री लैब में, ये एनहाइड्रस मतलब जब सूखा होता है, जैसे इसको एटमॉस्फेयर में रखोगे ये गीला हो जाएगा, मतलब पानी इसने सोख कर लिया, इसके सारे अंदर पानी चले गया, गीला हो गया, वेट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल किसका है? एब्जॉर्प्शन का। ये क्वेश्चन आया था, कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ, तुमने कहा एब्जॉर्प्शन। नहीं सर, जैसे चौक का एग्जांपल दिया था आपने, है, जैसे चौक का एग्जांपल दिया था ना हाँ, आपने। चौक में पानी अंदर चले गया था और उसके ऊपर भी है, वो एब्जॉर्प्शन है, मतलब दोनों हो गया, दोनों हो गया। अगर चौक को, मैंने चौक को पानी में डाल दिया, कह रहा हूं वाटर, अब डाई नहीं है, डाई तो सिर्फ ऊपर आती है, कलर सिर्फ ऊपर आता, अंदर नहीं जाता। सर हाँ बोलो। सर ऐसा कोई वो मतलब एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जो वो है सब्सटेंस है उसके ऊपर ऊपर वाली लेयर पे वो हाँ, एब्जॉर्ब हो ऊपर जाता है ऊपर कुछ भी? सरफेस पे बैठ जाता है, चिपक जाता है, अंदर नहीं जाता। लेकिन एब्जॉर्प्शन में ये पूरे अंदर नहीं चले सर, जाता है, ऊपर बल्ब के अंदर ऊपर चले जो जाता है ये। टॉप लेयर के ऊपर एब्जॉर्ब होता है ना, हाँ, अंदर वाली जितनी लेयर भी पे नहीं कोई होता ना सरफेस एब्जॉर्ब। कौन सा होता है, अगर एक क्यूब मैंने आपको दिया, उसका सरफेस क्या है? सारा ऊपर वाला, ऊपर का टॉप उसका, बस और कुछ नहीं। अभी जिस टेबल पे बैठे उसका जो टॉप है वो उसका सरफेस है, वहां पे बैठे हुए हैं मॉलिक्यूल्स, मुझे दिख थोड़े रहे हैं कौन से बैठे हैं, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के। आपकी दीवार होती है, उस पर भी मॉलिक्यूल्स आके चिपकते रहते हैं धीरे धीरे, उसके कारण वो काली हो जाती है, धीरे धीरे खराब हो जाती है, कलर फेड हो जाता है। कोई भी आप कलर कराते हो कितने टाइम तक चलता है? स्लो प्रोसेस है, वो एड्सॉर्प्शन होती है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एड्सॉर्ब कर लेते हैं। मॉलिक्यूल कहाँ से आते हैं? हवा में होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं उनकी। कार्बन डाइऑक्साइड के भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, और भी कई गैसेज हैं हवा में, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं उनके, वो सब एब्जॉर्ब होती रहती हैं दीवार के ऊपर धीरे धीरे, और फिर आप देखा कुछ समय बाद वो काली सी लगती हैं, थोड़ी थोड़ी गंदी हो जाती हैं। तो वो सब एड्सॉर्प्शन है, वो सब एड्सॉर्प्शन है। तो तुम्हारे डाउट क्लियर हो गए, यहाँ तक कोई तुम्हें डिफिकल्टी नहीं लग रही? हमने एग्जाम्पल दे दिए बहुत सारे, और इसका सारा लिख दिया यहाँ पर। अब देखो कि नेक्स्ट मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, जिस पे क्वेश्चन आया था। जो भी मैं डिस्कस करता हूँ ना, वो क्वेश्चन नहीं होता पेपर का, क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछले सालों से वहीं से लेता हूँ मैं, वही तुम्हें बता देता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हें रट्टेबाजी नहीं करनी। मेरा कोई भी स्टूडेंट, जितने भी हैं कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, रट्टेबाजी कोई नहीं कर रहा, समझ रहे हैं हम चीजों को, समझ रहे हैं। समझने से फिर हम भूलेंगे नहीं एग्जाम में, एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में भी, उसमें हम कर लेंगे आराम से। तो इसलिए हम समझ रहे हैं हर चीज को क्या हो रहा है। अब हमने लिखा है एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में कि एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। यहां पर एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो एड्सॉर्प्शन है ना भैया, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन जो होती है, मैं ये कह रहा हूं, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब तुम्हें पता ही है ऑलरेडी कि एक्सोथर्मिक का क्या होता है, मतलब इसमें हीट निकलती है, हमेशा हीट निकलेगी। हीट क्यों निकलेगी? देखो ये मॉलिक्यूल था यहां पर, ये आके यहां पे आ गया, अब जब यहां से यहां आके चिपक गया, इसके साथ ऊपर बैठ गया, तो ये हीट निकलेगी। यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ी है, तो क्या होगा? हीट निकलेगी। इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा एच नेगेटिव। और मैं कह रहा हूं ऑलवेज निकलती है, ऑलवेज निकलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया पेपर में कि हीट क्यों निकलती है। देखो कि यहां मॉलिक्यूल इधर था, ये ऊपर से आके चिपक गया, अब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई है, तो ये हीट छोड़ेगा, हीट छोड़ेगा, तभी तो उसकी जो इंटरेक्शन है होगी इसके साथ, तो हीट निकलती है, हीट निकलती है। इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होती है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में। तो यहां पर हीट निकलेगी विच इज नेगेटिव, ऑलवेज, कभी पॉजिटिव नहीं होती। एक और भी रीजन है कि देखो कोई भी रिएक्शन होती है तो हमें पता है डेल्टा जी क्या होता है।
डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। देखो थर्मोडायनेमिक्स में बताया, कोई भी रिएक्शन जब होती है उसका डेल्टा जी माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तब ये रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। की कंडीशन क्या बताई स्टूडेंट्स, कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब ये दो चीजों में डिपेंड करता है, डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, देख रहे हो आप, ये कह रहे हो इसका डेल्टा एच जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका जो डेल्टा एस है वो कितना होगा। देखो यहां पर क्या हुआ है कि जब मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे चिपक गया, इसकी एंट्रोपी क्या हुई है, कम हो गई है। यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा थी, डिसऑर्डर। तो 11th में तुमने पढ़ा था एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जब चिपक गया तो एंट्रोपी कम हो गई, मतलब डेल्टा एस नेगेटिव है। डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये साइन प्लस हो गया। कहने का मतलब ये क्या है कि टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। अब अगर डेल्टा जी माइनस करना है तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, ये होना ही पड़ेगा। सो टू मेक डेल्टा जी नेगेटिव, आप ये कह रहे हैं डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए, तब ये तो नेगेटिव होगा क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सिंस इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा है। एड्सॉर्प्शन जो होती है मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी है, मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूल्स शो टेंडेंसी टू गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। तो ये एक सरफेस फिनोमिना है, इसी को हमने एड्सॉर्प्शन कहा। इसमें हमेशा हीट निकलेगी, इट विल ऑलवेज बी एक्सोथर्मिक। इसने ये क्वेश्चन पूछा था व्हाई इट विल बी एक्सोथर्मिक, और उसका हमने जवाब आपको बताया कि व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या कह रहे हैं हम इसके बारे में। अब एक कह रहा है कि बताओ मैकेनिज्म क्या होता है, एड्सॉर्प्शन क्यों होती है। भाई एड्सॉर्प्शन क्या क्यों होती है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि कोई भी, तुमने कहा कि ये लो सॉलिड, तुमने ये कहा ये सॉलिड है, ये लो ये सॉलिड है सर, इसके सरफेस में मॉलिक्यूल आके बैठ गए हैं, ऐसे आके बैठे, और भी बैठे होंगे, तो सरफेस में मॉलिक्यूल चिपकते जा रहे हैं। तुमने कहा ये लो लिक्विड, इसके सरफेस के ऊपर तुमने कहा ये लो मॉलिक्यूल आके बैठ गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या वजह है कि सरफेस जो होता है वो अट्रैक्ट करता है मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर। कोई भी चीज किसी के साथ अट्रैक्शन क्यों करेगी भाई, केमिस्ट्री में ये सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब कि अंदर नहीं मॉलिक्यूल गए, ऊपर आके बैठ गए, अंदर नहीं गए, अंदर नहीं गए, ऊपर आके चिपक गए, ऊपर चिपक गए। ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर आके बैठ गए, इसका मतलब कोई ऐसी फोर्स है ऊपर जो अंदर नहीं है, जो जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ऊपर क्या होता है कि देखो जो एनवायरनमेंट, हम ये कह रहे हैं जो एनवायरनमेंट है मॉलिक्यूल्स का, एनवायरनमेंट कह रहा हूं, किसका होता है, मॉलिक्यूल्स का, जो टॉप पर है, जो सरफेस पे है, वो डिफरेंट है। क्या है, वो डिफरेंट है। भाई कैसे प्रूव करोगे डिफरेंट है, देखो कि आप इसी को ले लो, ये देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल सरफेस वाला है, अब देखो इसके अंदर फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है सरफेस वाले के ऊपर। लेकिन एक मॉलिक्यूल अगर अंदर है, उसको चारों तरफ से फोर्स एक्ट कर रही है, कहाँ से, चारों तरफ से उसके ऊपर फोर्स लगी हुई है, देख रहे हो इसको, इसके पास जो फोर्स है वो चारों तरफ है, हर तरफ है, हर तरफ है फोर्स। तो इसकी फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाती हैं, बैलेंस्ड हो जाती हैं, ये क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। इसके पास क्या है, जो टॉप का मॉलिक्यूल है सरफेस का, सरफेस वाला, इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो क्या, मैं कह रहा हूं अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, अनबैलेंस्ड। मैं इसे बोलता हूं उसके पास रेजिडुअल फोर्सेस हैं, तो उसके पास कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो रेजिडुअल फोर्सेस हैं उसके पास, जिसके कारण वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है।
और इसलिए वो मॉलिक्यूल्स आके ऊपर बैठ जाते हैं, बिकॉज इट हैज अनबैलेंस्ड वैलेंसीज, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड वैलेंसी। तो जब उसकी वैलेंसीज बैलेंस्ड नहीं है तो वो मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा सरफेस। लेकिन जो अंदर का मॉलिक्यूल है, देखो वो दिखा रहा हूं मैं, जो अंदर का मॉलिक्यूल है उसको क्या हुआ है, उसके पास जो फोर्स है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है। वही स्टूडेंट्स बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसकी सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं। तो ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड है, यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है, इसी के कारण एड्सॉर्प्शन होती है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज, देखो यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन देम सेम है, पर यहाँ पे सेम नहीं है। ये अंदर की तरफ है सारी फोर्स, तो बाहर वो खींचेगा बाहर के मॉलिक्यूल्स को। इसके लिए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं। क्या होते हैं? एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये भी समझ में आ गया हमें। अब ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, देखो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। दो टाइप की एड्सॉर्प्शन होती है भैया, एक होता है फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन कह रहा हूं मैं, और दूसरा होता है केमिजॉर्प्शन। नाम से ही समझ आ रही है कि क्या मैं कहना चाहता हूं। तो फिजिजॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिजिकल फोर्स होती है, वंडरवॉल, वीक वंडरवॉल फोर्स होती है, उससे चिपक जाते हैं सरफेस के ऊपर। हम ये कह रहे हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं। वीक फोर्सेस कौन सी होती है? केमिस्ट्री में तुमने पढ़ी, वंडरवॉल फोर्सेस तुमने पढ़ी हर चैप्टर में, इनको क्या बोलते हैं? वंडरवॉल्स फोर्सेस। तो वंडरवॉल टाइप फोर्सेस होती है यहाँ पर। और इसमें क्या होगा, केमी का मतलब ही समझ आ रहा है कि कोई केमिकल बॉन्ड बनने वाला है। क्या बनने वाला है? केमिकल बॉन्ड। तो देखो कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे सरफेस के ऊपर, वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? केमिकल बॉन्ड। और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सिर्फ वीक वंडरवॉल फोर्सेस से स्टिक कर जाएंगे मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, वो वीक फोर्स से स्टिक करके आपने ये कहा कि ये लो सर, ऐसी सिचुएशन आई है, देखो ये मेरा सॉलिड है, इसके ऊपर मॉलिक्यूल आके बैठ गए हैं, ये सरफेस है इसका, ऐसे बैठ गए, कोई बॉन्ड तो बनाया नहीं। अब कौन सी फोर्स है इनमें? वीक वंडरवॉल फोर्स है, ये वाली तुम कह रहे हो वीक वंडरवॉल फोर्स है इनमें, वीक वंडरवॉल फोर्स। और दूसरे केस में तुम ये कह रहे हो कि ये लो सर, ऐसा था जैसे ये मेरे पास था निकल का सरफेस, ये निकल है या प्लाटिनम है, अब हाइड्रोजन आई और इस पे चिपक गई ऐसे। अब देख रहे हो बॉन्ड बन रहे हैं, क्या बना रही है? केमिकल बॉन्ड बना रही है। तो इसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसको बोलते हैं केमिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? केमिजॉर्प्शन। तो हमने दोनों का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस किया है अभी। क्या क्या बोला मैंने? देखो वो कह रहा है व्हाट, यहाँ पे हमने लिखा व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट पहला हम कह रहे हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन मैंने तुम्हें बताया कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक फोर्स है इनके अंदर, एड्सॉर्बेट के अंदर, और ये एड्सॉर्बेंट है। ये क्या होता है? एड्सॉर्बेट। इसे क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट। फोर्स कौन सी है? वीक है, वंडरवॉल। तो ये वंडरवॉल वीक फोर्स से बैठे हुए मॉलिक्यूल्स। तो इसके इसके अंदर इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? देखो यहाँ पे हमने इनके करेक्टरिस्टिक्स लिखे। वो कह रहे हैं फिजिजॉर्प्शन में क्या होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा? If the adsorbate is held on a surface of adsorbent by weak van der Waals forces, the adsorption is called physisorption or physical adsorption. So this is an example of physical adsorption. तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुई है। यहाँ पर क्या हुई है?
फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कह रहा है इट इज नॉन स्पेसिफिक। देखो ये सारी बातें पूछी जाएंगी पेपर में जब वो पूछेगा। आप कह रहे हो जो फिजिक्स ऑप्शन होती है, क्या बोल रहे हैं अब, यहाँ पे हमने ये बताया आपको कि सर जो, यहाँ पे ले लेता हूँ चलो इसको, कि जो फिजिक्स ऑप्शन होती है, फिजिक्स ऑप्शन जो है ये क्या है, क्या लिखा है मैंने ऊपर, नॉन स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं डिपेंड करती कौन से मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जो भी आएंगे वो वीक वंडरवाल फोर्स से ऐसे यहाँ पे चिपकने हैं। कौन सी फोर्स है, जो वीक वंडरवाल फोर्स है उससे ये जुड़े हुए हैं, किससे, एड्सॉर्बेंट के साथ। तो इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता कौन सी गैस तुम कह रहे हो भाई, ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये नहीं कोई प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा भैया तो प्रेफरेंस होगी। बॉन्ड तो एक पर्टिकुलर एटम ही बना सकता है, कोई एटम बना सकता है, कोई नहीं बना सकता। तो केमिकल बॉन्ड जब बनेगा तो वो स्पेसिफिक होगा, वो स्पेसिफिक होगा। तो फिजिक्स ऑप्शन तुम कह रहे हो नॉन स्पेसिफिक है। दूसरा क्या लिखा है इसने, हमने क्या लिखा है इसमें, फिजिक्स ऑप्शन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये रिवर्सिबल है। तो फिजिक्स ऑप्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी केमिस्ट्री में जब मैं कहता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब तुमने इसको हीट देके, हीट दिया तो ये डिसॉर्ब हो गए और फिर एब्जॉर्ब कर लिया, डिसॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब एड्सॉर्प्शन हो रही है। क्या क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रही है और डिसॉर्प्शन भी हो रही है। तो ये रिवर्सिबल है, मतलब दोनों हो सकती है। तुमने कहा ये लो, एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन कर सकता हूं, डिसॉर्प्शन से एड्सॉर्प्शन भी कर सकता हूं, क्योंकि वंडरवाल वीक वंडरवाल फोर्स है। इनके अंदर कौन सी फोर्स है, वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं। कोई बॉन्ड नहीं बना, कोई बॉन्ड नहीं बना। और क्या देख रहा हूं, फोर्थ में वो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। इजीली liquefy gases like ammonia gas absorb to a greater extent than hydrogen helium. Higher the critical, more will be the extent of absorption. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आएगा पेपर में, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि फिजिक्स ऑप्शन पे जो होता है ना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तुमने पढ़ी थी भाई, तुम देखो 11th में हमने आपको बताया था गैसेस का लिक्विफिकेशन। गैसेस जब लिक्विफिकेशन करते हैं, लिक्विड बनाते हैं, जब गैसेस का लिक्विफिकेशन एक प्रोसेस होती है, उससे तुम क्या करते हो, तुम गैस से लिक्विड बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, क्या करोगे, तो गैस को कूल करा था हमने और हाई प्रेशर अप्लाई किया था। देखो गैस के ऊपर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर कम किया। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, क्या बोला था हमने, क्रिटिकल टेम्परेचर। जब तक वो टेम्परेचर नहीं आता तो गैस लिक्विड नहीं बनती। याद आ गया, 11th में हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है स्टूडेंट्स, हाई होता है, वो जल्दी लिक्विफाई होती हैं, उनका लिक्विफिकेशन फास्टर होता है। तो जैसे अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो इजीली लिक्विफाई हो जाएंगी, इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं। तो अगर वो इजीली लिक्विफाई होती हैं तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। इसका मतलब इनके अंदर जो वंडरवाल फोर्स होती है वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होती है। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होती है तो फिर एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। वही क्वेश्चन पेपर में आया था कि बताओ कि क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है एड्सॉर्प्शन का। तो ये कह सकते हो कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा टेंडेंसी है उसकी एड्सॉर्प्शन की, क्योंकि वो जल्दी लिक्विफाई हो सकती है, उसके अंदर वंडरवाल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो जिसकी वंडरवाल फोर्स ज्यादा बड़ी है उसकी एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होने वाली है, फिजिक्स ऑप्शन में हमने बताया, फिजिक्स ऑप्शन में हमने बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये इसको नोट किया जाए। वो देगा पेपर में भाई दो गैसेस हैं, बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर बता दिया कि अमोनिया का ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो बताओ लिक्विफाई कौन सी गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो तुमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इसकी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। ये बताया हमने। क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस इजीली। तो जिसका मतलब ज्यादा अमाउंट है, किसका, कौन सी गैस का ज्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब होने वाला है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है। एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल ऐसे चिपकेंगे क्योंकि ये वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस है। तो अमोनिया का ज्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होने वाला है, और नाइट्रोजन गैस का इनसे कम होने वाला है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर इनसे बहुत लो है, इनसे बहुत लो है। इस समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसी ऑप्शन का। अब ये कह रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब देखो कि सरफेस एरिया पे क्या होता है, एक होता है सरफेस एरिया। आपने क्या लिखा कि यहाँ पे आपने लिखा कि सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, सरफेस एरिया। जिस गैस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, मतलब जिस सब्सटेंस का जो एड्सॉर्बेंट की बात कर रहा हूं, जिस एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। क्यों, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि सर अगर तुमने चारकोल लिया, उसे पाउडर कर दिया तो पाउडर फॉर्म में वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव काम करता है, हमेशा पाउडर चारकोल लिया जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से उसकी एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे हमें दिख रहा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि ये पोरस सब्सटेंसेस होते हैं, जो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे एड्सॉर्बेंट बन जाते हैं। निकल है जैसे प्लैटिनम है, इनको क्या करते हैं हम, फाइनली डिवाइडेड बना लेते हैं। फाइनली डिवाइडेड जो होते हैं ना, वो बहुत इफेक्टिव काम करते हैं एड्सॉर्बेंट का, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आगे क्या कह रहा है, इट हैज लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। देयर आर वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। इसको हमने पहले ही बता दिया तुम्हें कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अंदर जो फोर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वीक होती हैं, और वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्सेस हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाँ सर ये सारे पॉइंट फिजिक्स ऑप्शन के अंदर है ना? हाँ, हमारे ये मैंने तुम्हें ये सारे पॉइंट समय मिलेंगे, हम इसको नोट्स पे आपको भेज देंगे, इसके ये सारे पॉइंट मिलेंगे, और वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी तुम्हें, इसलिए कोई सारा आराम से तुम्हें मिलेगा, पूरा आराम से देखते रहो और नोट कर लो अपने पेपर पे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब पेपर में आए हुए हैं, वही बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें से, इसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस होती है, किसमें, फिजिक्स ऑप्शन में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन कह रहा हूँ जिसको मैं, और ये वीक होती हैं। अब जब ये वीक होंगी तो फिर इसमें जो हीट निकलेगी वो कम होगी। इसकी वैल्यू कितनी बताई है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। तो इसकी एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी किस चीज की, एड्सॉर्प्शन की, एंथैल्पी एड्सॉर्प्शन की जो है वो लो है, क्या है, कम है, लो वैल्यू है। देख रहे हो कितनी है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, वो बहुत कम हीट निकलेगी, क्योंकि सिर्फ वीक फोर्स है, कौन सी, वंडरवाल। जब वीक फोर्स होती है तो हीट कम निकलेगी, कम निकलेगी। और क्या कह रहा है, इसके लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है। ऐसा क्यों,
ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ इसके लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए भैया, लो टेम्परेचर चाहिए। क्यों चाहिए लो टेम्परेचर बताओ? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो डिसॉर्प्शन हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, वो टूट जाएंगे। तो टूट के यहाँ से निकलते जाएंगे, वो यहाँ से क्या होगा, ऐसे बाहर आ जाएंगे, टूट जाएंगे। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये टूट जाएंगे, तो डिसॉर्प्शन हो जाएगी। इसलिए ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल है। हाई टेम्परेचर पर ये जो एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स हैं इनकी फोर्स वीक है, ये डिसॉर्ब हो जाएंगे, हाई टेम्परेचर पे डिसॉर्ब हो जाएंगे। और सातवां एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें कोई जरूरत नहीं है। देखो, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई बॉन्ड तो बना ही नहीं। केमिस्ट्री में हमने सीखा जब कोई बॉन्ड बनता तब एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ तो बॉन्ड बना ही नहीं, सिर्फ वीक वंडरवाल फोर्स से चिपक गए मॉलिक्यूल इसके ऊपर आके, तो इसलिए इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड नहीं है। सो नो और वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मॉलिक्यूल फिजिकल फोर्स वंडरवाल फोर्सेस से आके एक्यूमुलेट हुए हैं, एब्जॉर्ब हुए हैं। और खास पॉइंट देखो, ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता, क्या बनाता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर में सब आए, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता। भाई मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब समझ में आया कि ये फिजिकल फोर्स है। ये देखो, ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर आ रहे हैं, ये सरफेस है ऐसे, ये एक लेयर बनी, इसके ऊपर एक लेयर और बन गई, इसके ऊपर एक लेयर और बन गई, इस तरह से मल्टी लेयर मॉलिक्यूलर लेयर बन जाएंगी। मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, तो वो एक के ऊपर एक बैठ सकते हैं, क्योंकि वीक फोर्स है वंडरवाल की वीक फोर्स है, कोई बॉन्ड तो बना नहीं, इसे बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। तो मतलब मॉलिक्यूल्स जैसे ये आए, पहली लेयर, इसके ऊपर एक लेयर और बन गई, और इसके ऊपर मॉलिक्यूल की एक लेयर और बन गई, तो इस तरह से ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बन जाएंगी इस ये वाली जो ऊपर सरफेस पे है, क्योंकि ये वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में ही है कि वीक वंडरवाल फोर्स है। कौन सी फोर्स है? वीक वंडरवाल फोर्स। कोई बॉन्ड नहीं बना, केमिसॉर्प्शन में क्या होगा कि बॉन्ड बनेगा, केमिसॉर्प्शन में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर ये टॉपिक खत्म हुआ। तुम्हें बात समझ में आई हमारी, हमने क्या बोला तुम्हें कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत डिटेल में हमने इसका बारे में बताया आपको कि कैसे एड्सॉर्प्शन होती है और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्यों सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं और क्यों हीट निकलती है और इसका मैकेनिज्म क्या है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, वही सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम तुम्हें मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे चलेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आने वाले पेपर में। एनी डाउट? इसके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। कोई और तुम्हें डाउट है तो बताओ। नहीं है सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। अभी मेरी और क्लास चलने होनी है अभी, तो मैं फिर तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।